child is getting bullied at school, and as a parent, I'm not aware of it. कितनी बड़ी बात है। Where am I? बुली होने के बाद सुसाइड भी कर लिया और हमें आप पता ही नहीं सोचिए, चला। इट इज नॉट वन थिंग। तो ट्रिगर और एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी चीजों के लिए। फाइट नहीं किया एंड होता। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बच्चे में सिम्टम्स दिखते हैं। हाँ, कई दिखते। बार हम सिम्टम्स इग्नोर करते हैं, और कई बार हम सिम्टम्स को देखते ही नहीं हैं, बिकॉज वी आर सो बिजी विद आवरसेल्व्स। Hello everyone, I'm Reena Chopra, founder at Sar Holistic Wellness, and today we have a very beautiful human being with us, Captain Dr. Sunaina Singh, and she has proved it that motherhood is beyond being just a mother to a child. She is, I have to take a reference because she has done so much things. She is a mother, she is ex-army officer, she is Professor DU, she is PhD psychology and national handball player, sports and psychologist, SSB mentor. So you have a son who is a teenager, you know, and since you are from ex-army background and primarily it is you who's mostly available with your son. So how have you, if you have, taught him about sex education and falling into relationship, how to manage those uh, when somebody says no or rejection. So what is your insight on it? How do you do that? And if you will, in Because, future, how would you do that? yeah, so yeah, he's a teenager और ये चीजें आएंगी ही, we all know that. तो so I started with telling him when he was in grade 7th or 6th or 7th, because about the periods first, because it's just not, matlab, it's very important for him also to know. He might be, I told him, Nirbhay, aapki bhi friends hongi beta, so you really need to be careful if somebody needs help, and this is a very common thing which happens. And I told him everything about Natural. that. And Nirbhay is very open to me. Whatsoever comes, he asks me. And about this relationships also, I have told him, मैं कहने पे, first thing has to be the friendship बेटा. I think दोस्ती से खूबसूरत कोई चीज नहीं है, तो you please try to understand. And I think अगर आप बच्चों का पार्ट रहो तो पता चलता रहता है. I keep sharing my own experiences, my friends experiences with निर्भय. तो मैं एक स्टोरी के फॉर्म में कभी मैं अपना कोई एक्सपीरियंस पास्ट का उसको बताती रहूंगी. दिस हैपेंड विद मम्मा व्हेन मम्मा वाज वेरी यंग, एंड मोस्टली वेयर आई स्ट्रगल्ड. I tell him those incidents कि when I struggled and how I handled it ना, तो मैं उस चीज पे बात करती रहती हूँ. Then I'll give him some example of some friends, और the news coming these days जो अभी आया था इंस्टा के ऊपर भी, वो प्राइवेट जो चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें चल पड़ी थी, बॉयज रूम करके जो था. जी। तो I told him everything about that कि sometime, and I think it's you who need to decide on. और if there is anything which you are hiding from your parents or something, तो उसमें उसको दो बार सोचना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शायद गलत होगी. देन ओनली यू आर हाइडिंग. तो मतलब वेन एवर यू आर डूइंग एनीथिंग सच थिंग, और आई थिंक जब आप डेली ये चीजें री करते हो, यू आर विद योर चाइल्ड इधर ऑन डाइनिंग टेबल, और कभी वॉक करते हुए, और कभी आते हुए जाते हुए, तो आई थिंक बच्चा अपने आप सीखता रहता है. एंड वेन मी एंड प्रदीप ऑल्सो टॉक, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है जो हम निर्भय के सामने नहीं कर सकते. चाहे वो हमारी फाइनेंशियल, घर की कोई फाइनेंस की बात हो, या कोई पेरेंट्स को लेके बात हो, तो ही इज अ पार्ट ऑफ एवरी कन्वर्सेशन. तो इट्स ऑल ही इज ऑलवेज देयर एंड ही इज अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन. कई बार कई चीजें डाउट सिली होते हैं, बट उन्हीं से सीख भी जाते हैं कभी कुछ. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. फर्स्टली मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे को ना, जैसे निर्भय को भी पीछे मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं कहा निर्भय तेरे तो फिर भी ठीक है बेटा. व्हेन आई वाज इन क्लास 9 मेरे तो 53 मार्क्स आए थे, और नानू ने मुझे जो डांट लगाई थी, और उसके बाद जो मम्मा ने पकड़ा, तो ही अंडरस्टूड इट कि ऐसा नहीं है कि मम्मा इज जस्ट द परफेक्ट वन, हम ऐसे करते थे. तो आई डू शेयर माई ओन फेलियर्स कि मम्मा Failure. के साथ तो ये हुआ था, मम्मा के साथ तो ये हुआ था, यू स्टिल डू, यू स्टिल मैनेज. सो आई थिंक
समटाइम इट ऑल्सो गिव्स कॉम्पिटेंस, बट रियलिटी चेक भी मदर को ही रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हवा में भी बहुत जल्दी उड़ते हैं ना, तो वो भी हमें तो बैलेंस करने के लिए बड़ा जरूरी होता है। समटाइम्स वो खींचनी पड़ती है, फिर कभी वो डोर छोड़नी क्या पड़ती आपके है। साथ ऐसा हुआ है कि निर्भय के बारे में आपने किसी से सुना हो, और मतलब एनी फेलियर और मिस्टेक ना, जो फेलियर निर्भय नहीं, ने व्हेन किया निर्भय हो? वाज इन क्लास थर्ड। ओके। हाँ, तो व्हेन निर्भय वाज इन क्लास थर्ड, तो वी वर पोस्टेड इन दिल्ली हियर। तो उस टाइम पे भी निर्भय वेंट टू वन स्कूल, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द स्कूल। ठीक था, ही वेंट टू द वन स्कूल, और वहां वो सब अमीर, क्योंकि निर्भय को मैं जहां ट्राई कर रही थी वहां एडमिशन नहीं मिला ग्रेड 3 के अंदर, तो मुझे ऐसे लगा कि चलो इस डाल देते हैं, तो हमने डाला। तो वहां पे तो निर्भय से मैंने कुछ बातें सुनी विच वॉज अ शॉक फॉर मी। तो मुझे ऐसे लगा ये कैसे हो सकता है, बिकॉज आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई एम विथ हिम। द ओनली टाइम व्हेन आई एम नॉट विथ हिम स्कूल। वॉज स्कूल टाइम। तो मेरा तो उसी दिन जागा इमीडिएटली, और ये एज भी ऐसी होती है, ना पता होता सही क्या है, ना ये पता होता गलत क्या है। देन आई वेंट टू द स्कूल, देन आई आस्क्ड द टीचर। फिर पता चला निकल के एक और बच्चा था, देन मैंने पूछा। फिर एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट मैंने कहा आई वांट टू स्पीक टू द मदर, बिकॉज मेरे लिए वो भी मेरा ही बच्चा है। हाँ। It's something, it's not like Nirbhay, the other child is also just like me. Then very humbly आराम से मैंने बात करके, because sometimes we don't monitor our child की what they are seeing on the iPad। हम्म। ठीक है, तो मैंने निर्भय से प्यार से पूछा आपने किससे सुना, कैसे सुना, देन ही टोल्ड मी। तो ये आई थिंक उस एज में ज्यादा होती है, थर्ड फोर्थ वाली, ये बड़ी जब जब पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे बड़े सिंपल हैं। क्यूरियोसिटी। हाँ, क्यूरियोसिटी वाली ना, तो आज के टाइम में वो बहुत जल्दी आ जाती है, ये क्यूरियोसिटी वाली एज। सो दैट वाज द टाइम, वो मेरे को था कि मतलब ये कहाँ से आया, इसको कैसे पता चला एंड ऑल ना, तो वहां पे। बट आई थिंक व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड ना, बच्चा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता, मैंने ये देखा है। मतलब गलती करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि निर्भय गलती नहीं करता है, करता है, बहुत करता है, बट इमीडिएटली पकड़ा जाता है, बिकॉज यू आर देयर विद देम, कि मतलब आपको पता है। तो मतलब उसका मूड खराब और हमें पता ना चले, तो वही बात है कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो बच्चा भी सोचो, इफ अ चाइल्ड इज गेटिंग बुलेड एट स्कूल एंड एज अ पेरेंट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, कितनी बड़ी बात है। वेयर एम आई? बच्चों की शक्लें देख के, चाल देख के हमें पता चल जाता है ये टुडे हो दे रहा आर है, इन। और बुली होने के बाद सुसाइड भी कर लिया, और हमें आप पता ही नहीं चला। सोचिए, इट इज नॉट वन थिंग, तो ट्रिगर और एक चीज नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी चीजों के लिए ना। ओवरनाइट नहीं किया एंड होता। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम बच्चे में सिम्टम्स दिखते हैं। हाँ, कई दिखते बार हम सिम्टम्स इग्नोर करते हैं, और कई बार हम सिम्टम्स को देखते ही नहीं है, बिकॉज वी आर सो बिजी विद आवरसेल्व्स। सो हैं। दोनों ही चीजें ठीक नहीं है, इग्नोर करना भी नहीं। निर्भय का किसी दिन भी जब वो बताना ना चाहे, मैं पोक करती रहूंगी, कब तक? मैं कहा निर्भय टेल मी, तो निर्भय आर यू कंफर्टेबल नाउ, मैं कहा कुछ तो हुआ ही होगा ना, तो आई कीप आस्किंग हिम लाइक दिस, तो वो एट द एंड बता ही देता है कि ओह दिस इज व्हाट हैपेंड। देन यू रियली नीड टू टेल हिम कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी करो। देन और किसी की लाइफ में कोई कुछ पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि निर्भय आपको नहीं मिलेगा। And if there are so many good children around you, you please take inspiration from them, learn from them। मैं कहा कितना अच्छा है निर्भय कि तेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं कहा उनसे कितना कुछ सीख सकता है। नहीं। मैं कहा हमेशा उनके साथ रहना चाहिए ना, जिनसे मैं कहा मम्मा ने देख उन आंटी से क्या सीखा, मैंने उन आंटी से क्या सीखा। मैं कहा आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम सो मेनी फ्रेंड्स। हम टिल मैं कहा डेट अगर वो आंटी, जानते हैं। हाँ। या सो धीरे धीरे समझाते हैं। और आई थिंक चाइल्ड इज योर रिफ्लेक्शन एट द एंड। एट आप दैट। जो हो, बच्चा आपसे 19 या 21 ही जाता है। तो आज भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने मम्मी डैडी का ही रूप हूं। तो निर्भय मुझे ही कीप्स टेलिंग मम्मा आप बिल्कुल नानी हो गई हो। तो मैं कहा यार अब मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। तो बच्चे वही हो जाते हैं, तो मैंने जो उनसे सीखा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ज्यादा गलत जा रहा है तो हमें खुद को देखने की जरूरत होती है, आई ऑलवेज से सो। क्योंकि जो हम घर में बातें कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बातें कर रहे हैं, जब मैं अपनी मेड्स के साथ बातें कर रही हूँ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही हूँ, ये ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है बच्चों की। ठीक है, वो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि नानू नानी, दादू दादी, मौसी, चाचू, गांव, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू नो यस। दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर माय पेरेंट्स, मेरी मदर। मैं उसको कहती थी आप मदर टेरेसा हो क्या?
ठीक है, आई ऑलवेज यूज टू कॉल हर मदर टेरेसा, कि मतलब मैं कहा मम्मी आपको, और मम्मा का एक ही काम, कहती बेटा अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं भागना चाहिए, बाकी Yeah. सबको सब टाइम के साथ पता चल जाता है, और आपको किसी को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, यू डू योर ड्यूटी एंड जस्ट लीव इट। तो अब मैं, मेरे अंदर भी वही है कि आई ट्राई टू डू दैट। तो निर्भय अपने आप देखता है, आई थिंक बच्चे ना बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो Absolutely. व्हेन आई लुक एट निर्भय, इज अ सोशल चाइल्ड। तो मतलब मैं स्कूल में भी जाती हूँ, द फर्स्ट थिंग टीचर्स टोल्ड मी कि निर्भय लगता ही नहीं नया बच्चा है स्कूल का ना, तो इज वेरी अडेप्टेबल। मैं कहा हाँ जी मैम, 10th क्लास में 13 स्कूल है, कुछ तो सीख के ही आया है बेचारा तेरा स्कूल से। कुछ सीख ही लिया उसने। हाँ, तो फिर आई थिंक ये मुझे लगता है थोड़ा सा, तो बात करती रहती हूँ मैं निर्भय से। कई बार अपना एग्जाम्पल देके, कई बार उसके डैड का एग्जाम्पल देके, कई बार मौसी का एग्जाम्पल देके, मामू का एग्जाम्पल देके, तो उसी से सीखता रहता है आई थिंक तो थोड़ा बहुत। बात करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कम्युनिकेशन बात इज। के बना कोई है नहीं, बात सबसे, और वो हर के लिए है। हर एवरीबडी नीड्स दैट सेफ स्पेस, कि कोई हो जो मतलब जज ना करे हमें, कोई हो कि जिसके सामने दिल खोल के बात कर सके। और मुझे ऐसे लगता है ढूंढने से पहले वो सेफ स्पेस देना शुरू कर दो सबको, तो तो अपने आप हमें अपना भी मिल तो वो जाएगा। सेफ स्पेस आजकल नहीं मिल रहा है कैप्टन से, है ना, तो ही तो हम साइकोलॉजिस्ट उभर के आ रहे हैं कि हम दे रहे हैं। बिकॉज लोग दे भी नहीं रहे, दे भी नहीं रहे। लोग दे भी नहीं रहे वो सेफ आपकी स्पेस। वीकनेस पता चलते ही वो उस वीकनेस को मैनिपुलेट करके आपको और लो स्ट्रीम में ले जाएंगे, चाहे वो कितना क्लोज फ्रेंड है, चाहे वो अच्छा रिलेटिव है, चाहे फैमिली मेंबर ही है, बट वी हैव स्टार्टेड जजिंग यू, जजिंग ईच अदर वेरी मच। ये ऐसा या क्यों पहन रहा है, ये ऐसा क्यों खा रहा है, ये ऐसा क्यों घूम रहा है। सो आई थिंक दैट इज देयर। आई थिंक आपसे बात करके इतना ज्यादा मैं रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज my 16 years old boy has all the characteristic like skills. When it comes to skills, वो पियानो मास्टर है पूरा, 4 6 years की एज से वो सीख रहा है क्लासिकल। और नाइस, स्पोर्ट्स में ही इज टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम कोचेस एंड ही वांट्स टू डू एनबीए, वो कहता है कुछ बास्केटबॉल में ही वांट्स आई टू नो आई इनवॉल्व। तो मैं इतना नो। स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, और वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो दैट्स उसको सो नाइस। उसको जाना और लोगों से मिलना और ये स्पोर्ट्स करना और स्पोर्ट्स कराना, मतलब कैंपस में जितने छोटे बच्चे हैं उनको लेके आएगा, स्पोर्ट्स कराएगा, तुम भी करो तुम भी करो। और वो सब जानते हैं उसको, इसलिए उसका छोटा भाई भी पीछे 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 पीछे। और जो छोटा वाला बच्चा है हमारा, वो अब हमें नहीं देखता है, वो अपने बिल्कुल भाई को देखता है कि मुझे भी बिल्कुल। भैया जैसा बनना है, मुझे भी भैया जैसा पहनना है, मुझे भी भैया जैसे एक्सरसाइज करनी है, मुझे भी सब करना है। तो इसके बाद बिल्कुल आई थिंक एक बड़े बच्चे को जब आप ट्रेन कर देते हो, तो छोटा बच्चा अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग में चला जाता बिल्कुल। आई रेज्ड माय ओन ब्रदर। है। ओके। तो मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड है, इट्स माय ब्रदर ओनली, साहिल। सो ही ओके। इज 11 इयर्स यंगर टू मी। तो हाँ, मतलब माइनस मैंने 10 ईयर्स। फर्स्ट जो बेबी रेज किया है वो साहिल है। ही हैज ऑलवेज स्टेड विद मी। आफ्टर माय, मेरी शादी के बाद भी साहिल मेरे साथ था। ही वाज विद मी, मेरी 12th उसने मेरे साथ की। सो वी, मी एंड माय हस्बैंड ऑलवेज टेल दैट वी आर अ फैमिली ऑफ 4। सो साहिल इज आवर एल्डेस्ट किड, तो आई एम सो क्लोज टू हिम। तो जब मैंने साहिल के साथ वो इमोशनल कनेक्ट बिल्ड कर पाई ना उस टाइम में, 12th के बाद, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट ही वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माय पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आई थिंक वो हमेशा आ ऐसे लगता था, जाता है। मैं कहा डैड आप लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है, अब आप भूल जाओ। एंड साहिल के बारे में मैं आई लुक आफ्टर हिम। तो अभी भी जब भी मैं जब वहां पे भी हॉस्टल में डाला मैंने इसको, कॉलेज में पहले 12th उसने मेरे पास से ही की, और फिर मैंने उसको कॉलेज में डाला, तो जब भी छुट्टी होती है ही कम टू मी, भागा हुआ आएगा, फिर मुझे साथ लेके मम्मा के पास जाएगा। मैं कहा अच्छा चलो फिर तो। So that is also your तो children are learning, they're observing या how important सिबलिंग बॉन्ड, relationship family is, कि कितना या जरूरी है। I think we are बहुत discussing जरूरी है। so much for our children. I hope everybody who's going to watch this take some insights and start implementing also, क्योंकि कहीं ना कहीं सच में वो बॉन्ड कनेक्शन हमारा छूटता जा रहा है, उसको पकड़ने की बहुत जरूरत जरूरी है। मैं आज ही बोल रही थी, एवरी ईयर आई मेक श्योर कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ। माई बोथ सिबलिंग्स आर इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एंड एवरी ईयर दे कम।
ठीक है, ओके। संध्या अपनी बेटी 3 साल की है बट स्टिल वो मेरे पास छोड़ती है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर मदर। हमें ऐसे लगता है रिश्ते इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं अपनी लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन बेझिझक बेधड़क होके लेती हूँ, मुझे डर ही नहीं लगता, बिकॉज आई नो आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम बैक। मेरी मॉम, मेरे डैड, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फैमिली विल ऑलवेज बी देयर। स्टैंड और बाय। मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ते ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें अगर हम बस थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम कर देना बहुत अच्छे से निभते हैं। और पता है थोड़ी ईगो मारनी पड़ती है, ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा, उसके लिए ना बहुत जरूरी है। वी ऑल आर डिफरेंट। घर यस। में दो बच्चे सेम पेरेंट्स रेज करके जब अलग। नहीं एक जैसे होते हैं तो वी ऑल आर डिफरेंट, तो वी नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर। भाई यस। वो हमसे, हम ये नहीं कहो कि तो सही है या गलत है, आप ये कहो ये डिफरेंट है हमसे ना, तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो जब भी हमारी फैमिली इकट्ठी होती है ना, व्हेन आई गो, बच्चों को इतना प्यार मिलता है यार। मतलब ना मैं प्यार दिखाऊंगी, संध्या प्यार दिखाएगी, दादा दादी प्यार दिखाते हैं, नानू चाचू चाची, सब कोई प्यार दिखाता है बच्चों को ना। तो मैं कई बार बैठ के ना ऐसे सोचती हूँ, मैं क्या कितनी खूबसूरत चीज है ना, कि मतलब सच अ बिग ब्लेसिंग। और इसके लिए हमें करना क्या है कि अपने बच्चों के लिए अगर हम थोड़ी अपनी ईगो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आर्ग्यूमेंट्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस एक साइड में रख लें, तो फैमिली स्टिल, यू नो, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ऊपर कुछ अच्छा तो हम नहीं है। सबको लगता है वेन एवर यू आर विद योर फैमिली यार, सुबह से ले रात को बैठते हो, हा ही करते करते सुबह हो जाती है। आई थिंक कितना खूबसूरत है वो। तो अभी भी जब मैं गांव में जाती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं निर्भय को गांव साथ लेके जा रही हूँ। ही शुड नो कि गांव के अंदर भी मेरे कजन्स हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, और मेरा अपना गांव में भी नानू है, मामे हैं। तो आई थिंक मैं इसमें जो मैंने मम्मा से सीखा, मैं अब निर्भय को भी वही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एट द एंड अब मैं अपनी वर्थ मेरी जॉब या किसी से नहीं लगाती हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कितने लोग हैं जो मुझे प्यार कर रहे हैं, तो आई फील माई सेल्फ मोर ब्लेस्ड विद दैट। आई थिंक चलो इस दोस्त हैं, एपिसोड के बाद कभी आपकी अकेला वर्ड्स नहीं। और मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग और प्यार करने लग जाएंगे आप। तो मुझे तो ऐसे लगता है लाइफ इज अगेन अ ब्लेसिंग। यू नो, चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी कर लो जिंदगी में, कोई अपना नहीं है तो किसी भी चीज का मजा नहीं है। मैं निर्भय को हर रोज फिर भी यही बोलती हूँ ना, बिकॉज ये जनरेशन बड़ा देखती है कि न्यूयॉर्क में घर हो, ऐसा हो, हार्वर्ड में पढ़ो। मैं कहा बेटा कहीं भी पढ़ लो, पढ़ के कुछ अच्छा करोगे, ठीक है, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लिए जब तक करते रहोगे, हर कोई कर रहा है, कर रहे हैं। ठीक है, जब किसी दूसरे का करने लगते हो ना, तो वो जो आती है फीलिंग, मैं कहता दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। निर्भय प्लीज ट्राई टू लर्न दैट। सो मतलब दिस इज व्हाट माय पेरेंट्स रीइंफोर्स्ड अस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव सीन देम प्रैक्टिसिंग अराउंड, कि और वी आल्सो ट्राई आवर लेवल बेस्ट, कि मतलब आई थिंक फिर वही मदद लगता है करो। मुझे कि बच्चा, हाँ, जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं देख के अपने आप सीख सीख ही जाएगा। जाएगा। सीख ही जाएगा, सीख जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब आप बात करते हो तो मुझे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, अब मेरे आई बड़े नो। के बचपन से। लेकिन अभी समय बहुत कम है तो इतना सारा हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट थैंक यू कोई सो बात मच फॉर शेयरिंग योर नहीं, माय प्लेजर। टाइम विद अस। एंड जैसे आपने राइट। मैंने मन बना लिया मैं और पॉडकास्ट नहीं करूँगी, तो मुझे लगा कि आई गॉट लकी कि नहीं, मतलब मुझे कई बार ऐसे लगता है कि एक ही चीज ज्यादा रिपीट नहीं हो पाती है। बट आई थिंक वो तो लगता रिपीट करना जरूरी है। है, आई That's how थिंक you सो। spread such a beautiful message. ये बहुत मिस हो गया है। Hello parents, if you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one. And never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.